Now we will start with the next unit of the chemistry, chapter 2nd is matter around us pure. हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर, दैट वी हैव डिस्कस. ठीक है, इन द फर्स्ट यूनिट व्हाट वी हैव डिस्कस, व्हाट इज मैटर and how we classify the matter on the basis of physical properties. What is matter? Anything that has mass, occupies some space, perceived by our sense and offers some resistance is called matter. वो जो क्या करता है, जिसके पास जिसका एक स्पेसिफिक मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसको हम अपनी सेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का अपोज करता है. जैसे सपोज ये जैसे एक बुक है, ठीक है, तो ये बुक अपनी पोजीशन पे है तो अपने आप से मूव करना शुरू नहीं करेगी. जब तक आप उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक ये रेस्ट में ही रहेगी. तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until or unless it is compelled by some external force. तो हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है. अपने आप से वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा. सो एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई सम स्पेस, perceived by our sense and offers some resistance is called matter. Each and every material is made up from small particles, and these particles are so small and can be seen by naked eyes. Particles of matter have some space in between them. That space is called intermolecular space. Particles of matter attracts each other. That force of attraction is called intermolecular force of attraction. And a last property, that particles of matter possess the kinetic energy. So these are the properties of matter. Now third जो point आता है वो आता है classification of matter. So we classify the matter on the basis, on two basis. First basis जो आपका रहता है वो basis हम already discuss कर चुके हैं chapter 1 के अंदर. On the basis of physical properties we classify the matter into three categories: solid, liquid and gases. But on the basis of next second जो basis है, that is on the basis of chemical composition. So on the basis of chemical composition we classify the matter into three categories. That category is element, compound and mixture. So basically in the second unit what we have discussed, second unit के अंदर we'll discuss about the elements, compound and mixture. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. ये हमारा डिटेल डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर. तो दैट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि what is a different variety of matter on the basis of chemical composition. So सबसे पहला जो हमारा पॉइंट इसके अंदर आता है, what is substance and what are their types. ठीक है, तो substance is what matter which is a matter which have definite composition and definite physical and chemical properties and which
cannot be separated in smaller unit by any physical method. देखिए सब्सटेंस क्या होता है, 1 सेकेंड। सब्सटेंस को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। And pure substance further classified into two categories, element and compounds, and impure substance is classified into single category, that is mixture. So on the basis of chemical composition, substance is classified into three categories, or matter is classified into three categories, element, compound and mixture. Further हम mixture को again दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So that is a flow chart of the classification of matter on the basis of chemical composition. Chemical composition के basis पे कैटेगरी देखिए, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं सिंगल कैटेगरी विच इज नोन एज मिक्सचर. Mixture is further classified into two categories, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Is it clear? Now we'll discuss one by one all these parts. First, a pure substance and impure substance. Now what is pure substance and what is impure substance? अब जैसे कि नाम बता रखा है pure substance, तो substance which consists of same type of particles, जो क्या कंटेन करते हैं, एक ही तरीके के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस. अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ or which contain same type of particles are called pure substance. Whereas impure substance, a substance which consists of two or more type of particles. ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस. इज इट क्लियर? अब देखिए प्योर सब्सटेंस में हमने दो कैटेगरीज बताई, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में हमने क्या बताया, मिक्सचर. तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस क्यों है? बिकॉज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली एटम्स. जो एलिमेंट के अंदर जो सिंगल पार्टिकल या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल कौन सा होता है, एटम होता है. और कंपाउंड में जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल. एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम एटम्स एंड कंपाउंड इज मेड अप फ्रॉम मॉलिक्यूल्स. तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एटम्स कंसिस्ट करेंगे, और वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, और कंपाउंड जो होंगे
वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल कंसिस्ट करेंगे और दोज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही तरीके के पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे कि मिक्सचर इज बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ। तो उसका ग्रुपिंग या उसका मिक्सिंग जो होगा वो क्या बोला जाता है? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या करता है? दो या दो से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स कंटेन करता है, या तो दो या दो से ज्यादा वैरायटी के एटम्स कंटेन करेगा, दो या दो से ज्यादा तरीके के मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, या फिर कुछ एटम्स कंटेन करेगा, मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? आपका इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हमने जैसे बोला मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे आप पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर को मिक्स कर दें, तो अब उस मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या होगा? शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल कंटेन करते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। इज इट क्लियर? आया समझ में? Now we'll discuss. Yes. हाँ, ले लिया मैंने, ले लिया। Now we'll discuss one by one the variety of pure substance. तो सबसे पहला आपका जो प्योर सब्सटेंस आता है वो आता है एलिमेंट। So how can we define the element? So an element is smallest unit of substance which cannot be split into simpler units by any physical or chemical means, and which consists of same type of particles called atoms. वापस से डेफिनेशन में डिस्कस कर रहा हूं। एलिमेंट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इससे स्मॉलेस्ट यूनिट सब्सटेंस का एग्जिस्ट ही नहीं करता। एलिमेंट से छोटा कोई भी सब्सटेंस होगा ही नहीं। सो इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस। यानी इससे छोटा सब्सटेंस ना तो हम किसी फिजिकल मेथड से बना सकते हैं, ना ही किसी केमिकल मेथड से बना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसा कि हमने बोला कि एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम एटम्स एंड दीज एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल द रेस्पेक्ट। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कि एक एलिमेंट का एग्जांपल ले लिया, जैसे योर एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो कार्बन एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज कार्बन एटम्स। दे आर आइडेंटिकल इन ऑल द रेस्पेक्ट अबाउट इन देयर मास, अबाउट देयर शेप एंड साइज, अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। सारे रेस्पेक्ट में वो क्या होंगे? सेम होंगे। बट द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, जैसे एक एलिमेंट लिया कार्बन और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन। सो द पार्टिकल्स ऑफ कार्बन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन
atoms of the carbon are totally different from the atoms of oxygen. ऑक्सीजन के पार्टिकल्स या ऑक्सीजन के एटम्स और कार्बन एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे वो सारे रेस्पेक्ट में क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका शेप साइज, उन सारे रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, डिफरेंट रहेगा. इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? एलिमेंट में कोई डाउट? Element is the smallest unit of substance which cannot be split into simpler units by any physical or chemical means and which consists of same type of particles called atoms. यानी element हम ऐसा बोल सकते हैं that elements are, the element is made up from atoms. एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से बना हुआ होता है, और वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं. एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे एक ही तरीके के होंगे. और दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे. क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं. सो हाउ कैन वी क्लासिफाई द एलिमेंट? यस, एक सेकंड. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन या क्लासिफाई द एलिमेंट्स? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. So elements are classified into 4 categories. First आते हैं metals, then non-metals, then metalloids, and the last category is noble gases. So we classify the elements in the 4 different categories: metals, non-metals, metalloids और noble gases. अब देखिए, आप 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पहले से ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स. पढ़ा है ना आपने? साइंस के अंदर एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स और नॉन मेटल किसके टाइप्स होते हैं? एलिमेंट्स के टाइप होते हैं. तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? दे आर सॉलिड, metals are hard, they are sonorous, they are malleable, they are ductile, they are good conductor of heat and electricity. These are the properties of metal. मेटल की ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मेटल्स क्या होते हैं? दे आर सॉलिड. वो क्या होते हैं? उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है. और वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. दे आर सोनोरस. सोनोरस मतलब जब भी आप किसी ऑपरेटर्स या किसी भी ऑब्जेक्ट से उनको स्ट्राइक करते हैं तो एक डिफरेंट साउंड वो क्रिएट करते हैं. मैलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू द शीट. डक्टाइल्स मीन्स दे कैन ड्रॉन इनटू द वायर्स. उनको क्या कर सकते हैं? वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उनके थ्रू इजीली हीट और करंट पास हो सकता है. अब मेटल के एग्जांपल क्या हुए? मेटल के एग्जांपल्स देखिए, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल एंड मैनी मोर. ठीक है, बहुत सारे मेटल एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर. टोटल नेचर के अंदर 120 एलिमेंट्स अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं. कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? 120 एलिमेंट्स. उसमें से
कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और कुछ नोबल गैसेस हैं। तो सेकंड आता है आपका नॉन मेटल। सो नॉन मेटल कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है टोटली अपोजिट होती है मेटल के कंपैरिजन में। तो क्या होते हैं? दे आर सॉलिड और लिक्विड और गैस, यानी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉफ्ट होते हैं, नॉन सोनरस रहेंगे, देन नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्योरली क्या होती है? मेटल से अपोजिट रहती है। और नॉन मेटल के एग्जांपल हम लिखें तो नॉन मेटल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? नॉन मेटल में आप एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या बोले जाते हैं? नॉन मेटल्स बोले जाते हैं। फिर आते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट whose properties are resemble with the metals. Certain properties are resemble with the metal and certain properties are resemble with non-metals. मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? नॉन मेटल से मैच करती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या बोले जाते हैं? मेटलॉइड्स। क्या बोले जाते हैं? मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स whose properties match with metals and non-metals. Means certain properties match with metals and certain properties match with non-metals. So such elements are called metalloids. तो मेटलॉइड का एग्जांपल है, देखिए एक एलिमेंट होता है बोरॉन, वो मेटलॉइड है। फिर एक आता है गैलियम, देन जर्मेनियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या बोले जाते हैं? मेटलॉइड्स बोले जाते हैं। आपको चार पांच एग्जांपल्स याद रखने हैं कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। फिर आती है नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। नोबल का मतलब क्या होता है? इनर्ट। इनर्ट मतलब जो केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो दोज गैसेस विच आर केमिकली इनर्ट, those gases which are chemically inert means which cannot be react with any other substance, so those gases are called noble gases. और 6 gases को हम noble gases की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। These elements are known as noble gases. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These gases are chemically inert gases which cannot be react with any other substance. किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल क्या बोले जाते हैं? नोबल गैसेस। सो दैट इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। इज इट क्लियर? आया समझ में बाकी लोगों को?